السلام علیکم۔ یہی وہ جنت ہے جس کا ہم وارث ان لوگوں کو بنائیں گے جو پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ سمجھا؟ جو جو پرہیزگار رہے گا، گناہوں سے بچے گا، اسی کے لیے جنت اللہ نے تیار کر رکھی ہے، نیک لوگوں کے لیے۔ سورہ مریم آیت نمبر 63 میں اللہ فرما رہے ہیں جنت ہم ایسے لوگ کو وارث بنائیں گے جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ متقی عربی لفظ ہے، گناہوں سے بچنے والا، پرہیز کرنے والا، گناہوں سے نیک عمل کرنے والے کو، پرہیزگار کو متقی بولے۔ تو جنتی کون لوگ رہیں گے؟ جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ایسے لوگ کے لیے جنت تیار کر رکھی۔ صرف متقی لوگ ہی جائیں گے جنت میں، نافرمان لوگ، گناہ گار، مجرم لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سمجھا؟ سورہ مریم آیت نمبر 63 میں اللہ پر جنت تیار کس کے لیے کی گئی؟ نیک لوگوں کے لیے۔ سمجھا؟ یہ سورہ مریم میں ہے، اور سورہ محمد میں بھی اللہ فرما رہے جنت متقی لوگ کے لیے، آیت نمبر 15 سورہ محمد میں۔ سوچیے آپ، اگر یہاں ہم گناہ سے نہیں بچیں گے، جو اللہ نے منع فرمایا ہے وہ کام سے نہیں چھوڑیں گے، اس سے نہیں بچیں گے، تو ہم کو جنت نہیں ملے گی، جہنم ملے گی۔ سمجھا؟ بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ جو نماز پڑھ رہے، پانچوں ٹائم نماز پڑھ رہے، اللہ پڑھا رہا ہے نماز، اس کا مقصد بھی ہے کہ تم نیک بنو، پرہیزگار بنو، متقی بنو۔ اس کا مقصد نماز کا کیا ہے؟ نیک بنو۔ نماز کی آیت کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، نماز روکتی ہے۔ تو آپ جو نماز پڑھ رہے تو آپ کی برائی بات فاحشہ تو رکنا چاہیے۔ اگر رک رہی تو سمجھو آپ کی نماز اللہ کے یہاں قبول ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور باہر آ کے سب خلاف ورزی اللہ کے جو منع کیا اللہ وہ کام کر رہے، تو آپ کی نماز بے حیائی بری بات تو نہیں روکتی، تو آپ کی نماز نہیں ہے، بیسٹ، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ آپ خود ہی جائزہ لو نا، آپ نماز پڑھتے ہو تو کیا باہر سارے کام جتنے بھی دنیاوی معاملات قرآن کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں؟ تو نماز آپ کی روکتی ہے بے حیائی بری بات، تو آپ کی نماز صحیح میں پیور اوریجنل نماز، ورنہ ڈپلیکیٹ نماز پڑھ رہے یہاں خالی بس آ رہے جا رہے ٹکرے مار رہے فارمیلٹیز، اور باہر جا کے سب اللہ کے خلاف بات۔ نماز میں اقرار کرتے ہیں ہم تیری بندگی کرتے ہیں، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کا مطلب ہوتا ہے بندگی، عبداللہ، اللہ کا بندہ، عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، ہم تیری عبادت بندگی کرتے ہیں۔ تو پھر باہر آ کے تیری بندگی کرنا چاہیے نا اللہ کی، ہر کام میں، رشتہ دار سے، کاروبار میں، لین دین میں، چلنے پھرنے میں، سچ جھوٹ، کیا جھوٹ نہیں بولنا، سچ بات بولنا، غلط کام بول کے فروغ نہیں کرنا مال۔ نماز کا مقصد ہے کہ تم نیک بنو، پرہیزگار، متقی بنو۔ سمجھا؟ نماز کا مقصد ہے، یہ تھوڑی آپ لوگوں تو بھٹکا دیا نماز پڑھو ثواب ملے گا۔ نماز پڑھ کے باہر غلط کام کر رہے، کہاں سے ملے گا؟ آپ کو بولے نماز پڑھو ثواب ملے گا، ارے جب تم پورے کام باہر اٹھنا بیٹھنا گھر میں سب کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو گے تو تم کو پھر ملے گا نا۔ اب یہاں نماز میں کچھ بول رہے ہیں، سلام پھرنے کے بعد باہر آ کے سب نماز کے خلاف، جو نماز میں اللہ سے اقرار کر کے آئے مسجد میں، باہر آ کے گھپلا، چیٹنگ، جھوٹ، سود، بیاج، انٹرسٹ، لون سے کاروبار، کائی کی نماز تمہاری ضائع ہے۔ سمجھا؟ نماز کا مقصد ہی ہے کہ بری بات سے روکتی ہے، جتنی بری بات تب رکنا، فاحشات سے رکنا، منکرات، غلط کام سے رکنا، برے کام سے رکنا، تب تمہاری نماز ہے۔ اور روزے کا بھی مقصد یہی ہے، ہم نے تم پہ روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بنو۔ نماز کا مقصد بھی ہے متقی اور نیک بننا، اور روزے کا مقصد بھی ہے۔ کیوں نماز روزہ کرایا جا رہا ہے؟ تاکہ تم اللہ کی سب باتیں یاد رکھو باہر نکل کے۔ سمجھا؟ روزے بھی اسی لیے رکھے تاکہ تم متقی پرہیزگار بنو۔ سمجھا؟ دونوں کا مقصد ہے نیک بننا، نیک زندگی گزارنا اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو پرہیزگاروں کے لیے ہی جنت ہے۔ سمجھا؟ قرآن میں ہر جگہ لکھا ہے جنت صرف متقی لوگ کے لیے۔ سمجھا؟ سورہ نحل کھل کے دیکھو آیت نمبر 30، اس میں بھی اللہ فرما رہے
30 नंबर नहल जन्नत परहेजगारों के लिए, मुत्तकीन के लिए। आप सोचिए, आप गुनाह कर रहे हैं, नाफरमानी कर रहे हैं, तो क्या नाफरमानों और गुनाहगारों के लिए जन्नत है? कहीं लिखा है था कुरान में? सोचिए, आप बचिए गुनाहों से, समझे आप, तौबा करिए, इस्लाह करिए, सुधर जाए। मौका अभी भी है, मौत आई नहीं, अभी भी वक्त है। जब तक मौत नहीं आती सुधर सकते, अभी भी वक्त है। मौत कब आएगी आपको नहीं मालूम। सोचते बूढ़े होके सुधरेंगे, बाद में सुधरेंगे। मौत तो रात को कभी भी आ सकती है। रात को सोए सुबह उठे ही नहीं, जा रहे रास्ते में पीछे से गाड़ी वाले ने उड़ा दिया, ठोक दिया, गिर गए, मर गए, है ना। दिल का दौरा पड़ा, मर गए, गिर गए। जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं, इसलिए तैयारी कर लो, समझे आप। एकदम जिसकी मौत की कब आएगी मालूम नहीं, इसलिए अलर्ट है और हमेशा तैयार रहो। मौत का वक्त नहीं मालूम है ना हर इंसान को, अपनी मौत का वक्त किसी को नहीं मालूम, तो अलर्ट रहो, एकदम रेडी रहो। कभी भी मौत आई तो नेक और मुत्तकी, सब गुनाहों से बच के नेक अमल करने वाले रहेंगे तो फिर जन्नत मिलेगी, रूह भी कब आसानी से होगी, समझे आप। और नाफरमानी करते हुए मौत आ गई, गलत काम कर रहे, करते आ रहे, कर रहे, घपला किए, चीटिंग किए, लोन सूद ब्याज के इंटरेस्ट पे लोन ले रहे, ऐश कर रहे, सब कब मौत आ जाएगी पता ही नहीं। फिर समझे आप, सोचिए आप। अल्लाह ताला फरमा रहे जन्नत सिर्फ परहेजगारों लोग के लिए। ये बात है ना, अल्लाह ताला ने सूरे हिज्र में भी बोले, आयत नंबर 45 खोल के देख लो। जन्नत मुत्तकी लोग के लिए, परहेजगारों के लिए, जो लोग नाफरमानी से बचते हैं, गुनाहों से बचते हैं, उसको मुत्तकी बोलते हैं, परहेजगार। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलते, गलत काम नहीं करते, उसको, उसके लिए जन्नत है। आप पूरे कुरान पढ़ डालिए, जन्नत सिर्फ परहेजगारों मुत्तकी लोग के लिए, समझा। बल्कि अल्लाह ताला तो फरमा रहे, क्या ये लोग ये ख्याल करते हैं हम नाफरमानों को फरमाबरदारों जैसा कर देंगे? कैसा फैसला है लोग करते हैं ये भी अल्लाह बोला है, क्या हम फरमाबरदारों को नाफरमानों जैसा कर देंगे, नाफरमानों को फरमाबरदारों जैसा कर देंगे? जो लोग अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अल्लाह की बातों का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह की आयतों का इनकार कर रहे, हदीस को मान रहे, अल्लाह की यानी झूठी हदीस मान के अल्लाह की सच्ची बात को रद्द कर रहे, तो सब जाएंगे जहन्नुम में, समझा। झूठी हदीस को मान के ही आपका सारा मामला बिगड़ा हुआ है। अल्लाह की सच्ची बात कुरान में वो रद्द हो जा रही है, आपको खबर नहीं है क्योंकि आप कुरान पढ़े नहीं है। जो पढ़ा वो जानता है ना झूठी हदीस है कुरान के खिलाफ। जो पढ़ा है 300 पारा, जानकारी कुरान से लिया, वो जानता है कि हदीस कुरान के खिलाफ है, क्योंकि कुरान 300 पारा, ये जो तरावी क्यों पढ़ा जा रहा है? तरावी पढ़ा जाता है 300 पारा, फुल कुरान, पूरा कुरान पढ़ा जाता है ना तरावी रमजान में, पूरा कुरान क्यों हर साल पढ़ा रहा है अल्लाह पूरा कुरान? ताकि दिमाग में कुरान बैठा रहे। कुरान के खिलाफ जो भी बात आएगी हदीस की शक्ल में, आलिम बोला, मुफ्ती बोला, बाप दादा करते चले आए, तो कुरान से आप सच झूठ फैसला करते रहो, सच है कि झूठ है, क्योंकि कुरान का कैरेक्टर ही, कुरान का किरदार ही है कि वो सच बात झूठ बात का कुरान फैसला करती है। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, ये कुरान सच और झूठ को जुदा करता है। सच बात है कि झूठ बात कुरान फैसला करता है। सूरह तारिक आयत नंबर 13, समझा। अल्लाह की बात है कुरान, समझा। अल्लाह ने इंसानों से बात किया है कुरान में, क्या करना क्या नहीं, समझा। कुरान को फुरकान भी इसीलिए कहा गया है कि कुरान फर्क करती, सच बात झूठ बात का फैसला करती कुरान। ये कुरान सच बात झूठ बात का फैसला करती, कुरान फुरकान है। अल्लाह बोल रहे हैं क्राइटेरिया टू जज राइट एंड रॉन्ग, सच बात है कि झूठ बात कुरान जज करती। तो कुरान से ही आप, इसीलिए कुरान भरा जा रहा है कान में तरावी की शक्ल में, हर साल तरावी कुरान डालो कान में, तो आप तर्जुमा पढ़ो कुरान जिंदगी भर, डेली डेली डेली। तरावी अरबी में पढ़ते नहीं समझते, क्योंकि हमारी जबान अरबी नहीं है ना, मदर लैंग्वेज, समझा। तो तर्जुमा पढ़ो आप, तो गुनाह से बचेंगे। क्या गुनाह है, क्या सही, क्या गलत, आपको तरावी में सब बताया जा रहा है, समझा। पूरा कुरान पढ़ा जा रहा है, क्या सही क्या गलत, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा ना, अरबी में बोल रहे हैं इमाम साहब, पढ़ रहे, तो आप उर्दू में, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, जो जबान आती है, मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, सब जबान में कुरान आप पढ़ो ना, अपनी जबान में कुरान अपनी जबान में पढ़ो, तो आपको समझ में आएगी क्या सही क्या गलत, गुनाह कौन से। आप तो सवाब समझ के काम कर रहे हैं ना, तो सवाब मिलेगा। आप सोचते हैं 11वीं की नियाज करो, कुंडे की नियाज करो, वली अल्लाह के नाम की नियाज करो, तो सवाब मिलेगा, तो लोग खुश हो जाएंगे,
बख्शवाएंगे, जन्नत में ले जाएंगे, ऐसा सोचते आप। सवाब है खिचड़ा अली के नाम का, जाफर के नाम का, कुंडे की नियाज, आप लोग सवाब समझ के कर रहे हैं ना। कुरान में लिखा है अल्लाह के सिवा किसी का भी नाम का हराम, तो आप कुरान तर्जुमे से पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना, समझे आप। काबे में नहीं होता है, देखो प्योर सही प्योर इस्लाम दीन काबे में, वहाँ नहीं होता 11वीं 12वीं खिचड़ा नियाज फातिहा दरगाह मज़ार उरूस सल्लल सिफारिश वसीला, वहाँ ही नहीं, समझे, क्योंकि कुरान के मुताबिक वहाँ काम होता है ना, अकॉर्डिंग टू कुरान, समझे आप। सोचिए आप, अल्लाह फरमा रहे हैं इस खाने काबा के मुतवल्ली मुत्तकी और परहेजगार लोग हैं, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। तो वहाँ के जो है ना नमाज पढ़ा रहे आलिम इमाम साहब, ये वो लोग प्योर लोग हैं, वहाँ गलत काम नहीं होता, झाड़ फूक तावीज़ गंडा कुछ नहीं, कुरान खानी नहीं, मर गए तो इसाले सवाब नहीं, क्योंकि सब गुमराही वाले तरीके बिद्दत है, समझे आप, अल्लाह के खिलाफ ये सब काम, तो वहाँ प्योर काम होता है। तो आप कुरान पढ़ेंगे तो जानकारी होगी ना, आप सवाब समझ के कुरान खानी करेंगे। मैयत मर गई आप कुरान खानी, नबी साहबी ने नहीं किया, अरब में भी नहीं होता है, मर गए तो रिश्तेदार लोग का, यहाँ आप लोग कर रहे हैं, बोले इसका सवाब उसको मिले, नेक काम समझे, बल्कि गुमराही और बिद्दत, और बिद्दत का ठिकाना गुमराही का जहन्नुम है, समझा, हमेशा उसमें रहेंगे जहन्नुम में, समझिए आप। तो आपको मुत्तकी परहेजगार बनना है तो कुरान पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से काम है जो से बचना है कुरान बताए, और कौन से काम है जो करना है कुरान बताए, समझा। आप आयत पढ़ के बांध ले रहे, फूक ले रहे, सोच रहे सवाब है, अच्छा काम है, कुरान की आयत थी, कुरान की आयत क्या है, बांधने और फूकने के लिए थोड़ी, कुरान में जो बात आयत में बोला है वो बात पे अमल करना है आपको, सोचिए आप, अमल करना है वो बात पे, अल्लाह का हुक्म है ना कुरान, अल्लाह का हुक्म है, ऑर्डर है अल्लाह का, ये काम करो ये मत करो, हुक्म है ना, तो हुक्म को बांधा और फूका नहीं जाता, जो अल्लाह के हुक्म है कुरान में जो आयतें हैं उसको बांधी नहीं जाती, हुक्म को बांधता है कोई, हुक्म को फूकता है कोई, मालिक आप नौकरी करते हैं, हर जगह काम करते हैं, दुकान में कंपनी में, तो उसका जो मालिक हुक्म देता है आपको, तो मालिक के हुक्म को वो लिख के बांधते हैं और फूकते क्या हुक्म को, हुक्म पे अमल करते, जो बोला वो काम करते हैं। तो मालिक जो कुरान में अल्लाह बोला है, अल्लाह हमारा मालिक, तो उसने जो जो हमको बोला है कुरान में, ये करो वो करना है, ये काम मत करो, शिर्क है कुफ्र है, अल्लाह की बात को झुटलाओ मत, तो सब बात जानकारी कब होगी, जब आप कुरान पढ़ेंगे, गुनाहों से बचेंगे। तो गुनाह के कौन से काम है, तो ये सवाब की शक्ल में आता है, नेक इबादत की शक्ल में आता है कि ये इबादत है, वली अल्लाह के नाम का खाओ, वली अल्लाह की चादरें चढ़ाओ, फूल या उनकी सिफारिश वसीला लगाओ, ये आप सोचते हैं सब नेक काम है, सब गुनाह के काम है। कुरान पढ़ रहे हैं मैयत के लिए, अल्लाह बोल रहा है जिंदो लोग को कुरान पढ़ के सुनाओ, फज़क्किर बिल कुरान, जिंदो लोग को कुरान पढ़ के सुनो, तो आप मैयत को क्या पढ़ रहे हैं, सवाब पहुंचा रहे हैं, सवाब ट्रांसफर थोड़ी होता है, तुम्हारा अमल तुम्हारे काम आएगा, उसको तुम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, ये सिस्टम जो निकाले बिद्दत है, इसाले सवाब का जो सिस्टम है, कुरान खानी या खाना पाना खा के गरीब को खिलाना, यतीम को, इसका सवाब मैयत को मिले, जो मर गया उसको मिले, सब गलत है, कुरान के खिलाफ, देखो काबे में नहीं होता, नबी साहबी भी नहीं किए, समझे आप। जैसी करनी वैसी बननी, जो करेगा गुनाह वो भुगतेगा, जो नेक अमल करेगा वो पाएगा, समझे आप। अल्लाह बोले ना तुम्हारा अमल तुम्हारे काम आएगा, उनका अमल उनके काम आएगा, समझे आप। सूरह यूनुस में भी बोला, सूरह बकरा में भी बोला अल्लाह ताला ने कि तुम्हारा अमल तुम्हारे काम आएगा, उनका अमल उनके काम आएगा, समझे आप। तो इधर उधर ट्रांसफर सिस्टम थोड़ी कि तुम करो और मिले मैयत, सोचिए आप, सब बातें जो मैं बता रहा हूँ आप कुरान, समझे आप। सूरह शायरा भी देखिए आयत नंबर 90 में, जन्नत मुत्तकी लोग के लिए, समझे आप, देखिए आप, सब जगह कुरान में लिखा जन्नत परहेजगार, परहेजगार मुत्तकी किसको बोलते हैं, और अरबी में मुत्तकी आयत में लिखा है, अरबी नीचे परहेजगार उर्दू में लिखते हैं, जो गुनाहों से बचता है उसको बोलते हैं मुत्तकी, परहेजगार, नेक अमल जो करता है, समझा, गुनाह से बचता है, उसके लिए ही जन्नत। बार बार अल्लाह ने कुरान में बुलाया, आप देखिए खोल के, सूरह कसस भी खोल के देखिए, सूरह कसस आयत नंबर 83, वहां भी लिखा है जन्नत सिर्फ मुत्तकी परहेजगार लोग के लिए, समझा। जो लोग भी गुनाह कर रहे हैं पकड़े जाएंगे, समझा, और अल्लाह की बात को झुटलाएंगे। अल्लाह की बात को आप कैसे झुटला रहे, हदीस मान के, झूठी हदीस मान रहे, अल्लाह की बात को झुटला रहे, समझा। कुरान पढ़िए, कुरान पे अमल करिए, कुरान की इत्तिबा करने का ऑर्डर है, सूरह आराफ आयत नंबर 3 में, इत्तिबा करो उस किताब की जो हमने नाजिल की, दूसरे
लोगों की औलिया दोस्तों की इत्तेबा मत करो, दूसरी किताबों औलिया दोस्त किसकी बात पे चलते, आलिम मुफ्ती है ना, उलमा की, तो उलमा की किताबों पे मत चलो। अल्लाह बोल रहा है, अल्लाह ने जो किताब नाजिल की उसकी किताब करो पैरवी, उसको फॉलो, दिस बुक लिखा है, कुरान को फॉलो करो, बोल रहा है अल्लाह इस किताब को फॉलो करो। समझा आप? दूसरी किताब पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। समझा? हदीस की शक्ल में है ना सब किताबें, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, इब्न माजा, नसाई, मुस्नद अहमद, दार कदनी, है ना, फजाइल अमाल, बहिश्ते ज़ेवर, कसीसुल अंबिया, आफ्ताब आलम, सब मिलावटी किताब, आधी सच आधी झूठ। समझा? थोड़ी बात सही है ताकि लोग अट्रैक्ट हो, पकड़े, और बाकी सब मिलावट है अंदर, पहले असली घी बाद में नकली, सब मिलावट कर करके दे रहे। जो भी किताब दूसरी पढ़ेगा वो गुमराह हो जाएगा। कुरान ही हिदायत की किताब है, अल्लाह बोला ना, हिदायत की किताब कुरान है, सूरह जासी आयत नंबर 11। समझा? तो इसकी इत्तिबा करिए और नेक अमल करिए, नेक अमल करने वाले लोग के लिए ही जन्नत है, मुत्तकी लोग के लिए ही जन्नत है। समझा? पूरे कुरान में अल्लाह ने बता दिया है, परहेजगार जो गुनाहगार गुनाह से बचते हो, समझा, उन्हीं के लिए जन्नत है। आप लोग मायने से कुरान पढ़ेंगे तो सच झूठ गलत सही पता चलेगा ना। सोचिए, आप जन्नत में जाना है तो नेक अमल करिए और गुनाहों से बचिए। जो जो बातें कुरान के खिलाफ है सब रद्द कर देना, कुरान के खिलाफ कोई बात को नहीं मानना और कुरान के खिलाफ अमल नहीं करना, वरना फंस जाएंगे, मुजरिम, जुर्म करने वाला। समझे आप? जो लोग किताबें लिखे सब पकड़े जाएंगे, जितने लोग किताब लिखे ना दीन के नाम से, सब मुजरिम अल्लाह की नजर में। सोचिए, अल्लाह बोला ऐसे लोग की खराबी जो अपने हाथों से किताबें लिखते हैं और कहते हैं सब अल्लाह की बातें, अल्लाह की। सूर्य बकरा आज 79 79। समझा? किताब आ चुकी ना, किताब है क्या, किताब आ गई है इंसानों के लिए हिदायत, हुदल लिन्नास, पूरे इंसानों के लिए हिदायत है, ये बोल रहे हैं। कयामत तक इसकी हिफाजत अल्लाह कर रहा है, मिलावट से पाक हिदायत। समझा? यही है तुम्हारी रहनुमाई, गाइडेंस। समझा? सोचिए, आप पढ़िए, नबी खुद आपके बारे में शिकायत कर रहे हैं, कुरान में दिया है इसमें, सूरह फुरकान आयत 30, वकाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, ऐ मेरे रब, मेरी इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, छोड़ रखा है। आपकी शिकायत हो रही है, आप लोग कुरान नहीं पढ़े ना, छोड़ दिए, आलिम मुफ्ती बोला, बाप दादा करते हैं, इस पे चल रहे आप लोग, कुरान को छोड़ दिया आप लोग। नबी शिकायत करेंगे क़यामत के दिन, कुरान में लिखा है, देख लो, अल्लाह बता दिया, तुम लोग की शिकायत, जो लोग उम्मतियों की शिकायत कर रहे हैं सब जाएंगे जहन्नम में, जो कुरान को छोड़ा है ना। पढ़िए आप तर्जुमे से और गुनाहों से बचिए, नेक अमल करिए। समझे आप? मायने से पढ़िए कुरान, तर्जुमे से अपनी ज़बान में। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।